قاری صاحب کی تلاوت آپ حضرات محفوظ ہو رہے تھے تلاوت کلام اللہ سے۔ اب اس کے بعد بچوں کی جنہوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا ان کی دستار بندی ہونی ہے، لیکن دستار بندی سے پہلے اس محفل کے صدر حضرت مولانا محمد عارف صاحب ندوی استاد جامعۃ الہدایہ جے پور سے میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اپنی دینی باتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ حضرت والا کے مختصر خطاب کے بعد بچوں کی دستار بندی ہوگی، اس کے بعد دعا کے نشست کا اختتام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ وقال الله عز من قائل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، تقریباً 1.5-2 گھنٹے سے ہم لوگ مدرسہ مصباح العلوم منصوریہ کے نئی طور چھوٹے چھوٹے بچے، یہاں پڑھنے والے طلبہ کے شاندار علمی ادبی پروگرام سن کر محظوظ ہو رہے تھے، اور اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ وہ بچے جو کھڑ ہے جے پور کی زبان میں کھڑ ہوتے ہیں اس کو کیسے ہیرا بنایا جاتا ہے، کہیں سے کھڑ لا کر کے، اور اگر ماہر کاریگر کے ہاتھ میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے تو وہ کھڑ جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، بازار میں جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، اور تو نے سوار کر کے، کاریگر نے تیار کر کے اتنا قیمتی بنا دیا کہ صاحب اب انمول موتی بن گیا، انمول موتی بن گیا۔ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے بچے کہاں کیسے کیسے گھرانوں سے لا کر کے اس مدرسے کے اساتذہ حضرت قاری جنید صاحب اور قاری حسین صاحب اور ان کے پیدارے بزرگوار مدرسے کے محترم و ذمہ دار حضرت مولانا عبدالواقی صاحب، ایسے ہی مدرسے کے سرپرست حضرات صدر جناب قاضی عبدالرزاق صاحب اور جناب نثار بھائی، اور بھی دیگر محلے کے تمام لوگ ماشاءاللہ اس کار خیر میں شریک ہیں، اس کار خیر میں شریک ہیں۔ اور سچ ہے کہ مدرسے کے لوگوں نے اور محلے کے فکر مند حضرات نے، جن کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے، ایک فکر دی ہے کہ کیسے سماج کے اندر سدھار پیدا ہو، کیسے وہ بگڑے ہوئے ہمارے بچے درست ہو جائیں، دین متین ان کے اندر کیسے پیدا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو یہ سمجھنے اور سمجھانے اور عمل کرنے کی کیسے لائق بن سکے۔ دنیا میں یہ تو بہت سی محنتیں ہو رہی ہیں، کوئی دنیا کے کمانے کے اندر لگا ہوا ہے، کوئی دنیا میں اپنے مزید ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک تیسرے ملک، چوتھے ملک، پورے
सय्याह बना हुआ है, इब्न बतूता ज़माने का बना हुआ है, इब्न जुबैर मुलसी बना हुआ है। तारीख में ये सयाहीन के बड़े नाम आते हैं। लोग न जाने क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन कुर्बान जाइए ये छोटे छोटे दीन के मकातिब को कायम करके, मदरसे को बना करके और उनमें अपना ताउन दे करके और समाज को सुधारने के लिए और दीन मतीन को पैदा करने के लिए अल्लाह के भेजे हुए कानून और शरीयत को रुए जमीन पर आम करने के लिए जो ये मेहनत कर रहे हैं मेरे दोस्तों, इससे बढ़कर कोई मेहनत नहीं है, इससे बढ़कर कुछ मेहनत है नहीं। एक हदीस मुझे इस वक्त याद आ रही है, मेरे अजीज तवज्जो के साथ सुनो, प्यारे नबी की प्यारी बातें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उग़दु आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बन वला तकुन खामिसन फतहदिक अन तुबग़िदल इल्म व अहलह। हदीस शरीफ के अंदर है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहला काम बच्चे के घर में पैदाइश हो तो दीन मतीन की तरफ उसकी राग़िब करो। जनाब बच्चा अभी पैदा हुआ है, कैसे राग़ करेंगे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या है, पैदा होने के फौरन बाद बच्चे के दाएं कान में अजान के कलिमात कहो। कोई हमें बताए कि अजान के कलिमात अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ये बच्चा उसको समझ रहा है? नहीं समझ रहा है, लेकिन हर वो चीज जबान से मुंह से निकलती है वो अपना असर रखती है। यही चीज जब बच्चे के कल्ब के अंदर आएगी और दीन के कलमा के बच्चा सुनेगा तो ऐसा वो मुर्तसिम हो जाएगा, ऐसा मरकूज हो जाएगा मेरे दोस्तों, कल जब होश संभालेगा तो इंशाअल्लाह उससे खैरी के काम और लोगों को सलाह और फराही का काम उससे सुदूर होगा। ये बड़ी अच्छी बात है। दाएं कान के अंदर अजान दिलवाओ और बाएं कान में इकामत कहो, अल्लाहु अकबर। इसी वजह से एक हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन वुलिद लहू वलदुन फलयुहसिन इस्मह। तो मान जाइए, हमारे आपके अल्फाज नहीं, दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान, खैरुल बशर, आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, अहमद मुख्तार, हबीब किबरिया और सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है। क्या फरमा रहे हैं? जिसके घर में बच्चे की पैदाइश हो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलयुहसिन इस्मह, उसको नाम अच्छा रखे। नाम पूछा गया अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के रसूल सबसे बेहतर नाम क्या है? कि अल्लाह की तरफ जिसका ताल्लुक हो, अब्दुल्लाह हो, अब्दुल रहमान हो, वो नाम रखो। और वअद्दिब, उनको दीन की तालीम सिखाओ, अदब सिखाओ। नाम भी अच्छा रखो, दीन की तालीम। तो फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम्हारी जिम्मेदारी है लोगों कि अपने बच्चों की तरबियत करो। कुरान करीम के 28वें पारे के सूरह तहरीम के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने पूरे लोगों को खिताब करते हुए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ लोगों, अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने बाल बच्चों को, अपनी बीवियों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचाओ, कैसे बचाएं? हज़रत सय्यदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि बात से कैसे बचाएं? तो आपने फरमाया कि जो तुम अमल को जानते हो और तो खुद करो अच्छा अमल को, और बच्चों को घर में तरबियत, बाकायदा बच्चों को और बीवी को, और जो तुम्हारे माता है उनको अच्छी बात करने का हुक्म दो। इसी वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलात व अबनाउ सब्र सनीन। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जावे तो उनको नमाज का हुक्म दिया करो। नमाज का हुक्म, 7 साल का बच्चा मुकल्लफ तो होता नहीं है, वो अभी अकल तो नहीं है, वो तो चाइल्ड है। लेकिन कुर्बान जाइए, आप सल्लल्लाहु फरमा रहे हैं बच्चों को, जब बच्चा इब्तिदाई से देखेगा और माँ बाप उसको तलकीन करेंगे नमाज की,
تو کیا کرے گا؟ بچے کے اندر نیکی پیدا ہوگی، صلاح پیدا ہو اور فلاح پیدا ہوگا، خیر سگالی کے جذبے پیدا ہوں گے. یہ فرمایا تو مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. 7 سال کے بچے جب ہو جائیں تو ان کو خود نماز کا حکم ہے. اور پھر فرمایا جب 10 سال کے ہو جائیں، 10 سال کے ہو جائیں، جب بالغ نہیں ہوا تو فرمایا ان کو نماز کے نہ پڑھنے پر پٹائی بھی کر سکتے ہو. وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئے الفاظ ہیں. کیا فرما رہا ہے کہ 10 سال کے بچہ ہو جاوے، 10 سال کے بچہ ہو جاوے تو اس وقت جو ہے انہیں کیا کرو گے؟ نماز کے نہ پڑھنے پر تعلیب کرو، مختصر تعلیب کرو اس کو. وَفَرِّقُوا فِي مَضَاجِعِهِ. اب اس طرح کو الگ کر دو، لمبی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ دیکھو پہلا کام جو تمہارا ہو تو عالم بنو. یا عربی زبان کی بلاغت میں غدا کرنے سب سے پہلا کام جو کیا جائے غدا بولتے ہیں. غدا ہے نا حدیث کے اندر لغدوۃ فی سبیل اللہ اور رحمۃ خیر من الدنیا فیہا. اللہ کے راستے میں صبح کو چلنا یا شام کو چلنا دنیا کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں سب سے بہتر ہے. تو فرمایا عالم بنو، عالم. اور عالم بننے کی تمہاری قسمت میں نہیں ہے تو عالم بننے کی کوشش کرو، یعنی طالب علم بنو، متعلم بنو. اب یہ طلبہ ابھی عالم کے نہیں لیکن عالم بننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. فرمایا کہ کسی کی قسمت میں یہ بھی اگر نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے کہ قسمت میں نہیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں مدرسے میں مکاتب میں جاتے ہیں، داخلے لیتے ہیں لیکن تکمیل نہیں کر پاتے. شاعر نے کہا ہے نا لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک. اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہو، کامیاب ہے، کامیاب ہے. ہاں تو فرمایا عالم بنو، عالم سب سے بہترین. اور فرمایا عالم کون ہوتا ہے؟ آقا مدنی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا عالم کی فضیلت پورے سماج پر، پوری ملت پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت میری مخلوق پر ہے. کہاں اللہ اور کہاں مولا؟ وہ حی لا یموت ہے، اس کو موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. وہ نہ کھانے کا محتاج، نہ سونے کا محتاج، نہ پانی کا محتاج، کسی چیز کا محتاج نہیں. اور ہم اور آپ سراپا محتاج ہیں. وہ آقا بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے. اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، اور مخلوق کے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تم سب محتاج ہو اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے. تو فرمایا متعلم بنو، طالب علم بنو. اور پھر فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو سکے کہ قسمت میں یہ بھی نہیں ہے تو فرمایا مستمعان، ان کی باتوں کو بڑی دھیان سے ساتھ سننے والا بنو، بڑی دھیان کے ساتھ سننے والا بنو. جو عالم کہہ رہا ہو تعلیم. ابھی آپ کے طلبہ نے اچھی شاندار تقریریں کی اسلام کی بنیادی چیزوں پر، روزے پر، نماز پر، حج پر، زکوٰۃ پر، ارکان اسلام پر تقریریں کی. تو فمن کی باتوں کو توجہ کرتی کیسے اصلاح ہوئے. وہ مدرسے کے ذمہ داران یا ہمارے اساتذہ یا ہمارے تعلیم، خواہ ان کے نام مختلف ہوں، خواہ قاری حسین صاحب ہوں یا قاری قلیش صاحب ہوں یا مولانا عبدالوحید صاحب ہوں، اور ان کے ساتھ دینے والے پوری ٹیم، پوری جماعت ہو. خبروں نے جب محنت کی تو معلوم ہوا کہ کارواں جو ہے آہستہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تنہا تھے. آپ نے صدا لگائی اور لوگ آتے گئے. خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ ایمان قبول کیا، ابو بکر صدیق نے ایمان قبول کیا، حضرت علی نے قبول کیا. ایمان ہوا کہ آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر چپے پر اسلام پھیلا ہوا. اور ایک حدیث کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ابقى على وجه الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله الاسلام بعز عزيز وذل ذليل. پھر وہ زمین پر کوئی کچا یا پکا ایسا مکان باقی نہ رہے گا جس کے اندر اللہ کا الہ و دین اسلام داخل نہ ہوگا.
लोगों ने बुराई फैलाने के लिए टीवी का और मोबाइल का और न जाने कैसे कैसे आलात का इजाद किया। सोचा था शैतान अपने जैसा बना देगा। शैतान तो चाहते ही है कि जैसा वो है। इंसान कहता मसल शैतान इस क़ाल लिसानिक फलम्मा कफ़र क़ाल इन्नी बरीउम मिनका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन फकान आक़िबतहुमा अन्नहुमा फ़िन्नारि ख़ालिदैन फ़ीहा वज़ालिका जज़ाउल ज़ालिमीन। बहुत करीब होकर के शैतान इंसान को कहता है काफिर बन जा, ऐसा काम करो जिससे अल्लाह की नाफरमानी हो, अल्लाह नाखुश हो, नाराज हो, ऐसा काम कर। जब वो कर लेता है अब कहता मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। इन्नी बरीउम मिनक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं तो अपने रब से डरता हूँ। लेकिन अल्लाह ने कहा शैतान के लिए तौबा नहीं, सबके लिए तौबा है, सबके लिए तौबा है। लेकिन शैतान के तो मेरे दोस्तों तो क्या फरमाया भाई, उनकी बात को ध्यान से सुनने वाला बनो। और अगर ये भी किसी की किस्मत में न हो सके तो फरमाया क्या बनो भाई, पांचवा मत बनना अहले इल्म से बुग़्ज़ रखो, तलबा से नफरतें करो, उलमा से नफरतें करो, इनका हकीर जानो, ऐसा कभी मत करना। ये ज़ुरूफ़ रसूलुल्लाह है, ये अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं। तो मेरे दोस्तों ये मदारिस देखने के तौर से बड़े छोटे छोटे हैं, न इनके पास इमारतें शानदार लखोतक, लेकिन कुर्बान जाइए कि जो इसके अंदर काम हो रहा है, ऐसे लोग मेहनत के साथ रात दिन करके जो इसको दीन को फरोग देने में लगे हुए हैं, वो बहुत ऊंचा काम। इसीलिए मदरसों की कदर की जाए और अपने बच्चों को देखिए दीन सिखाइए। अगर दीन नहीं सिखाएंगे तो वही हाल होगा जो चार जहां आलम के अंदर देख रहे हैं, और दुनिया एक दिन खत्म होना है। अभी आपको तलबा ने पेश किया कि मुसलमानों मंजिल तुम्हारी कब्र है। मंजिल रोजाना जनाजा उठता है, अपने कानों पे कांधा रख देते हैं, लेकिन इबरत नहीं हासिल करते। अरे वो मरा है ना, अभी मैं तुम जिंदा हूं। मेरे दोस्तों इबरत का मकाम है, फ़अतबिरू या उलिल अब्सार। तो ये मदरसे बिल्कुल ऐसी इतने अहम है, इतने अहम है जैसे समाज के अंदर हॉस्पिटल होता है। हॉस्पिटल में बाहर किसी को पेट में दर्द है, किसी को नजला जुकाम है, खांसी है, किसी को बीमारी है, डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करो, उनसे बाकायदा कहते हैं। उनसे ज्यादा जरूरी है कि मदारिस हो, जो उलमा हो, जो दीन की रहनुमाई आपको करें और बाकायदा हर चीज बताए, क्या नाजायज है, क्या जायज है, क्या फर्ज है, क्या हराम है, हदूदुल्लाह के अंदर क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है, विरासत में कितना किसका हिस्सा है। आज मुसलमानों ने विरासत को ताजीब कर लिया है कि बेटियों का हिस्सा ही नहीं देते, जैसा है उनका कोई हिस्सा ही नहीं है। हालांकि मर्दों के मुकाबले में अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर औरतों के हिस्से को पहले बयान किया है। बढ़िए कुरान करीम के सूरह निसा के दूसरे आयत यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह तुमको ताकीद से हुक्म देता है कि मर्दों का हिस्सा उतना होगा जैसे कि एक लड़की का डबल हिस्सा, एक लड़की का जो एक हिस्सा होगा उसके मुकाबले में डबल हिस्सा लड़के का होगा। अगर उसको 2 आना है तो लड़की का 1 आना है, अगर उसको 1 रुपया है तो लड़की का 8 आना है। तो मेरे दोस्तों बहुत कुछ जरूरत है। कहते हैं पंबा कुजा न हम हमातन दारश। आप दीन की बातें कहते हैं कि लोगों को शायद गुजरती है, और क्या कहेगा मेरे दोस्त, दीन की बात सुनिए और दीन की बुनियाद पर आप आगे तरक्की करेंगे। तो ये मदरसे कायम रहेंगे, इनको दामे दिरमे सुखाने कदमे जैसे उनको मदद कीजिए, अल्लाह की मदद। आखिर कोई तो बात होगी, अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ईमान वाले अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और जिन लोगों ने अल्लाह के दीन की मदद नहीं की, अल्लाह की मदद से उठ गई, पामाल हो गए, बर्बाद हो गए। किसी ने कहा है ना, सोई हुई दुनिया को बेदार किया हमने। ये मदारिस का हक है, उलमा का कह सकते हैं, सोई हुई दुनिया को बेदार किया हमने, फितरत के इरादों का इजहार किया हमने, फितरत के इरादों का इजहार किया हमने, बातिल के खुदाई का इनकार किया हमने। ये अगर जुर्म है तो 100 बार किया हमने। मेरे दोस्तों तो जरूरी है बाकायदा एक मुस्लिम जवान को ऐसा होना चाहिए कि बाकायदा अपनी जमीन पर वो चले तो कुरानी सिफात पैदा हो। तो ये
चाल में, ढाल में, ये कौशल और हवेलियत बनाने से मुसलमानों के कोई स्टेटस, कोई मेयार, कोई स्टैंडर्ड हाई नहीं हो जाएगा। अपने दिलों के अंदर ईमान, आखिर तो बात है अल्लाह का ऐलान, तुम मोमिनीन, ऐ लोगों तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। ये कहीं अल्लाह ने कहा इनको तुम मुतसल्लिहीन, अगर तुम्हारे पास हथियार है, वे अपनी पावर के मालिक होंगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। कहीं अल्लाह ने नहीं कहा, लेकिन कुर्बान ने जगह तुम मोमिनीन, और लोगों ईमान पैदा करो, सिफत ईमान पैदा करो, सहाबा वाले ईमान पैदा करो। तो देखो लंबे लंबे कुरान मजीद की तफसीरें हैं, आयतें हैं, मौका इसका निकाह आपसे बात की जाए। इसलिए मेरे दोस्तों ये मदारिस को कदर की निगाह से देखो, और ये लोग जो ताउन कर रहे हैं इनको भी इखलास की दौलत, देखो इखलास की बुनियाद पर कीमत है, वरना अगर इखलास नहीं तो सब बेकार है, सब बेकार है। अगर दिखावा के लिए चंदा इसलिए देंगे, साहब मदरसे वाले अगर हमारे यहाँ कुरान खाली में भेजेंगे तब तुम चंदा देंगे, और नहीं भेजेंगे तो नहीं देंगे, इसके बाद नफसानियत आ गई। अल्लाह के लिए नहीं किया आपने, अल्लाह के दीन के लिए नहीं किया आपने। साहब मेरा काम बनेगा तो हम देंगे, वरना नहीं देंगे, नफसानियत आ गई, क्या मिलेगा। मेरे दोस्तों कहते हैं ना पूरे जिस्म जो है जख्मों से बिल्कुल बदन चूर चूर है, कहाँ कहाँ पर हम रखा जाए। तो मेरे दोस्तों इन उलमा से कुर्बत हासिल करके दीन सीखो, दीन दाखिल करो, तो अल्लाह की मदद के मुस्तहिक हो जाओगे। अल्लाह दुआ है, मुबारकबाद देता हूँ बच्चों को जिन्होंने कुरान मजीद को मुकम्मल किया। कल क़यामत के दिन उनके माँ बाप को जो रोशनी का ताज पहनाया जाएगा, क्या मुकाम होगा, क्या मुकाम होगा मेरे दोस्तों। और साथिया ये जो लोगों ने तावन किया, अगर आपने तावन किया अल्लाह आपको भी शरीक करेगा। बहुत से नेकियां वहां वो देखेंगे कि अल्लाह मैंने तो कुछ नहीं किया, जन्नत में की हवेलियां कैसी बनी हुई है, नहीं तुमने मोहब्बत की नजर से अल्लाह के रसूल के मेहमान को देखा था, तालिब इल्म को देखा था। और बाद लोग की आदत होती है, मैंने कहा ना पांचवा मत बनने वरना हलाक हो जाओगे। अरे मदरसे के बच्चे तो ऐसे हैं और वैसे हैं और गंदे हैं और शन्ने हैं, खाली शिकायत ही आती है। तो मेरे दोस्तों इन आदतों को छोड़ो और अपने आप को सुधारो। अपने बच्चों को ये सजा करके भेजते हो, उनको रेज करते बिल्कुल। मेरे दोस्तों इन बच्चों को मोहब्बत की नजर से देखो और दीन को फरोग करने के लिए इदारों को मदद करो। किसी एक शख्स वाहिद की वजह से इदारे नहीं चलते, ये अल्लाह का दीन है। अगर तुम नहीं करोगे, अल्लाह ने कुरान मजीद अगर तुम मदद नहीं करोगे अल्लाह दूसरे को भेजेगा जो तुम्हारे जैसे नहीं होंगे। तो बल्कि अगर हमारा कुछ लग जाए मदरसों के फरोग में, मदरसों के बनाने में, मदरसों को संभालने में, तलबा को, तो हो सकता है हमारे खानदान को हाफिज कुरान न हुआ हो, लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा ये तुम्हारा बच्चा है, ये हाफिज कुरान है। कैसे? जो मदरसे के एक बच्चा जो हिफ्ज़ कुरान कर रहा था, तुमने उसका ताउन किया था। अल्लाह के नजदीक रहमत बहाना भी जो है, तो अल्लाह ताला बहाने की बुनियाद पर मेरे दोस्तों मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सबसे पहले उन बच्चों को जिन्होंने कुरान मजीद का हिफ्ज़ किया, ये नाज़रा मुकम्मल किया, नूर नबूवत को अपने सीने में पेवस्त कर लिया, और उनके माँ बाप को और ऐसे मदरसे के जिम्मेदार को हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब हो गए, या इनका साथिया हाफिज हुसैन साहब हो गए, हाफिज जुनैद साहब हो गए, और जो भी है मदरसे के जिम्मेदारान में जो मदद करने वाले हैं, हाजी निसार साहब हो गए और अब्दुल रज़ाक साहब हो गए, तो मुबारकबाद पेश करते अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। बातें तो बहुत कुछ थी, मैंने अनुमान तो बहुत कुछ शुरू किया था, लेकिन वक्त की तंगदामनी की वजह से जो चाहता था वो भी न कह सकता। बाबा जितना कहा गया मेरे दोस्तों, कहते हैं ना अमल के लिए थोड़ा ही से काफी है। अब आयशा रज़ी अल्लाह कहते हैं खैरुल अमल मा क़ल्ल व दल्ल, बेहतरीन अमल वो जो कम से कम हो लेकिन हमेशा हो, पंक्चुअलिटी के साथ हो, मुदावमत के साथ हो। तो इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह देखिएगा हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर कैसे तब्दीलियां करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी नेक दुआएं और हसीन तमन्नाएं आपके साथ हैं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह हमें भी हमारी नस्लों को भी दीन से जोड़ा रखे। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह आप हजरात हजरत वाला के खिताब से मुस्तफीद हो रहे थे। अब वो घड़ी करीब आ पहुंची है जिसका इंतजार था, और ये बस जिसके लिए सजाई गई है हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वाले